Namaste, Sat Sri Akal, Adab, and welcome to the 14th episode of Weekly Takes by Jagjit from New York. Your love and blessings to the Weekly Takes has been overwhelming. The last two episodes crossed 5,000 views, and I thank you all from the bottom of my heart. As usual, we start by talking about news of USA with a special focus on elections 2020. A little known fact about New York City, news of India, wherein we will talk about the important current events, history of Bihar, and finally, we'll talk about the future of the Congress party. Let's begin. News of USA. It's September the 5th, and we are only 59 days away from the 2020 presidential elections and 2 days away from Labor Day. Labor Day is celebrated on the first Monday in September to honor and recognize the American labor movement and the works and contributions of laborers to the development and achievement of the United States. And this year, so many of us are out of job and struggling to put food on our tables. A shout out to the mighty union SSEU Local 371, which is fighting every day not to allow any layoffs. Remember, essential workers are not expendable workers. Now let us talk about the 2020 presidential elections. Who is winning? It all depends on which news channel you are watching. If you are watching CNN, Biden-Harris is the winning ticket. If you listen to Fox, it's Trump and Pence, another 4 years. As per the Slate magazine and the Wall Street Journal, the Rasmussen Reports is the most accurate polling firm for the United States presidential elections. There used to be another firm, Gallup. The new National Telephone and Online Survey finds Biden with 46% support among likely US voters to Trump's 45%. It's neck to neck. Joe Biden has lost ground since the close of the Democratic National Convention, and he and President Trump are now running neck to neck in the latest Rasmussen reports. To an answer to another question, voters see a more divided America after 4 years of the Trump presidency. But they also think that the country is less divided than it was when Barack Obama stepped down. They are also more convinced that a Trump defeat in November will make the division even worse. Points to be taken note of, America. Let's not slacken. One thing which bothers me, more so because I come from India, why do protests and riot-like situations happen at the time of elections? The question needs to be answered. Who is to benefit out of these situations? Will such incidents all over America not result in voter consolidation? Think about it. Share your thoughts. Write in the comment box. In another Democratic Party primary elections, Senator Ed Markey defeated Representative Joe Kennedy III in the Massachusetts primary on Tuesday. The election marks the first time a member of the Kennedy political dynasty has lost a statewide election in Massachusetts. Clouds of political dynasties are ending worldwide. Watch out for hints back in India. In the last episode, we had talked about the staggering amounts of money being spent by parties and candidates in elections. We need to know as to where does the majority of this money comes from. And whoever gives the money, is it for free or does it come with strings attached? In simple terms, is it kosher? Why can't these monies go to the struggling masses? Strange that the champions of the left who talk a lot about the labor spend big amounts on elections and not on social reforms. We'll discuss all that in our next episode. Now,
Moving over to some interesting facts about New York City. Let's see how many of them do you know. Do you know how many babies are born in New York City in a day? Yes, 327 babies. That's a lot of babies. The New York City Library is home to more than 50 million books. As such, it is the third largest library in the world and the second largest in the United States behind the Library of Congress. Do you know which is the largest? If you do, share it in the comment box and you will have a special mention in the next episode. Isn't it interesting? The oldest building in New York City dates back to 1642, known as Wyckoff Farm. The house, which is located in Brooklyn, is now a museum dedicated to the city's Dutch heritage. In 1780, winter was so bad in New York City that New York Harbor froze. As a result, people could walk from Manhattan to Staten Island on ice. That's definitely one of the strangest facts about New York City. But here, I imagine the fun children must be having during those times. Does not mean that I want it again. New York City is home to the most billionaires in the world. And there are more than 380,000 millionaires in the city. चले भारत की ओर। पहले अपडेट बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड का। जनता को इंतजार है कातिल के गिरफ्तारी की। एनसीबी और सीबीआई के जांच में ड्रग एंगल सामने आया है। बॉलीवुड और कुछ राजनीतिक नेताओं के बड़े बड़े नामों के खुलासे होने की खबर है। बहरहाल रिया के भाई शौविक और रिया के द्वारा एम्प्लॉयड सुशांत के कर्मचारी हाउस मैनेजर सैमुअल मिरंडा की गिरफ्तारी हो चुकी है। खबर है कि दिल्ली सरकार इज क्लोजली मॉनिटरिंग द केस। गौरतलब है कि बिना पुलिस के जानकारी के किसी इलाके में चोरी तक नहीं होती और बिना नेता के कोई पुलिस वाला थाने में बहाल नहीं होता। यानी सब कुछ सभी की जानकारी में और रजामंदी से ही होती है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ज्यादा दिन की मेहमान नहीं लगती है। देखें आगे क्या होता है। भारत चीन बॉर्डर पर फिर गहमागहमी है। चीन ने फिर घुसपैठ करने की सोची, लेकिन हमारे मुस्तैद जवानों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब तक ये होता आ रहा था कि चीन हमारी सीमा में घुस आता था और हम वार्ता के द्वारा मनोबल करते थे और यह कहकर अपनी कमजोरी छिपाते थे कि चूंकि एलएसी डिफाइन नहीं है इसलिए ऐसा हो जाता है। इतिहास में पहली बार भारतीय सेना चीनी सीमा के अंदर घुसी है और अपनी जमीन को वापस कब्जाया है। भारत के हर नागरिक का सीना गर्व से 56 इंच का हो गया है। इंडिया हैज ऑक्यूपाइड द स्ट्रेटेजिक हाइट्स ऑफ ब्लैक टॉप on the southern bank of Pangong Lake, and from here it can control Rizangla on one side and the Gurung Hill controlled by the Chinese on the other side. इससे कई बातें उभर कर आई हैं। Number 1, we are now controlling some areas which were so far controlled by China. Number 2, we have crossed over the LAC, our perception of LAC as visible in the map, figure 8 on North Bank. It is a story of tactical planning and courage and a skilled execution. Indian Army did it with the help of SSF, covert unit comprising of Tibetan resistant warriors who specialized in these terrains and in covert operations. The SSF and IA successfully crept into the darkness, evading the Chinese surveillance equipment placed on the heights and removed them. ऐसे ये जीत हुई थी। But so much is happening along the borders, but as per reliable information and sources, not all good is happening in the Middle East, particularly in Saudi Arabia. Almost 1 million Indians live in Saudi Arabia and it runs a school under the supervision of Indian Embassy. It is reported that these schools have become hotbed of radical teachings. Government of India must look into this at the earliest. अब बात बिहार के इतिहास की। इस अंक में हम लौटते हैं जयप्रकाश जी की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा पर। इसमें चर्चा करेंगे उनके भाषण के बारे में और उनके संपूर्ण क्रांति के विचारों के बारे में। 5 जून को जैसे ही रेणु जी ने अपनी कविता समाप्त की, जेपी मंच पर आए और उन्होंने सभा को संबोधित करना प्रारंभ किया। उनके विचार एक शिक्षक के थे।
आइए आज शिक्षक दिवस पर हम मानवता के इस महान शिक्षक को सलाम करें। जेपी ने कहा, बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति, मेरे युवा साथियों, बिहार के असंख्य भाइयों, नागरिकों, मैं अब थक गया हूँ, लेकिन थकने का अवकाश मुझे नहीं है, क्योंकि आज बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हमारे कंधों पर आई है। यह जिम्मेवारी मांग कर मैंने किसी से नहीं ली और न ही किसी ने यह पद मुझे प्रदान किया है। यह जिम्मेवारी जनता ने मुझे दी है। जयप्रकाश जी ने उसके बाद जिन मुद्दों पर आंदोलन शुरू हुआ था उस पर बोलना शुरू किया। गरीबी, बेरोजगारी, असंवैधानिक अलोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए जनता को जागरूक होना होगा, संगठित होना होगा, बिना किसी जातीय, प्रांतीय, भाषाई और सब प्रकार के भेदभावों के, क्योंकि सरकार जो नीतियां बनाती है उन्हें बनाकर सो जाती है और नीतियां सबके लिए बनती हैं, इसलिए सबको अपने हित के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। और इस बुलंदी से जातिवाद, व्यक्तिवाद का हक सोचे बिना तभी इसका हल निकलेगा। इस समाज के अग्रणी विचारक ने जनता को सचेत करते और जागरूक करते हुए समाजवाद, आधुनिक लोकतंत्र, दलविहीन लोकतंत्र और संपूर्ण क्रांति के विचारों से जनता को अवगत कराया। उन्होंने व्यवहारिक समस्याओं पर ध्यान खींचते हुए उनके राजनीतिक समाधान की चर्चा की। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा कि आर्थिक असमानता साधनों के नीति स्वामित्व के कारण उत्पन्न होती है। जो निजी स्वामित्व है वही समाज में समस्याएं उत्पन्न करने का कारण बनती हैं। असमानता दूर करने से उनका उद्देश्य यह नहीं था कि एक की संपत्ति छीनकर दूसरों में बांट दी जाए, बल्कि व्यवस्था को ऐसा बनाया जाए जिससे कि लोगों को कार्यों और जीवन पद्धति के मुताबिक जीने का अवसर मिले। उद्योग और कृषि दो ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर अर्थतंत्र का मूल टिका हुआ है। उन्होंने उन उपायों पर चर्चा की जिससे उत्पादन के साधनों का पुनः वितरण करके आर्थिक विसंगतियों को दूर किया जा सकता है। उनका विचार था कि उद्योगों का मात्र राष्ट्रीयकरण कर देने से आर्थिक विषमता दूर नहीं होगी, वरन इससे नौकरशाही और मजबूत होगी और आर्थिक एकाधिकार उनके हाथों में चला जाएगा। बड़े उद्योग आर्थिक विषमता को कम नहीं करते, वरन इससे उनका केंद्रीयकरण हो जाता है। इसलिए उन्होंने आर्थिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। इसके लिए लघु उद्योगों को सबल बनना ही पड़ेगा। इससे हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा और लघु उद्योग चौतरफा विकास में माध्यम होगा। सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा, गांवों का उत्थान, बेरोजगारी में कमी, शहरों का पलायन, बहुआयामी विकास इससे किया जा सकता है। यदि आर्थिक साधनों तक सबकी पहुंच होगी तो आर्थिक असमानता स्वतः कम होगी। कृषि के संबंध में भी उनके विचार स्पष्ट थे। उन्होंने विनोबा भावे के साथ काम किया था, इसलिए वह कृषि की समस्याओं से भली भांति परिचित थे। कृषि के क्षेत्र में उनकी दृष्टि में समाजवाद का अर्थ था जमींदारी प्रथा का अंत और सहकारी कृषि की शुरुआत। इसके अतिरिक्त सहकारी ऋण से किसानों को कृषि रोजगार के अवसर मिल जाएं ताकि वह शोषण से मुक्त हो सके। अगर सरकारी ऋण और बाजार व्यवस्था सुदृढ़ होगी तो किसानों की स्थिति सुधरेगी। इस तरह यह देखा जा सकता है कि उनकी विचारधारा में कृषि और उद्योग दोनों के विकेंद्रीकरण समाजवाद के अनिवार्य अंग हैं। यहाँ मार्क्स और समाजवाद के अर्थ को देखना आवश्यक है। जहां मार्क्सवाद सिर्फ उद्योगों के विकेंद्रीकरण पर जोर देता है, वहां समाजवाद में जयप्रकाश जी ने दोनों के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया है। उन्होंने कृषि और उद्योग के समाजीकरण के लिए नैतिक और लोकतांत्रिक साधन अपनाने पर जोर दिया। सच्चा समाजवाद तभी संभव है जब इसके लिए चौतरफा प्रयास किया जाए। किसी भी प्रकार की असमानता को समाप्त करने के लिए, समाज को सबल बनाने के लिए श्रमिकों, किसानों और मध्यम वर्गीय जनता में राजनैतिक चेतना का विकास समाज का अहम मुद्दा है। तभी वह आर्थिक दास्ता को समाप्त कर सकता है। उन्होंने अपनी पुस्तक वाई सोशलिज्म में लिखा है कि कोई भी दल समाजवाद की स्थापना तब तक नहीं कर सकता जब तक राज्य की शक्ति उसके हाथों में न हो। अपने संपूर्ण क्रांति की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि वर्ग चेतना का उदय तभी होगा जब इसकी स्थापना समाज में व्यवहारिक होगी।
उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा कि समाजवाद को साम्यवाद के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। साम्यवाद में जहां भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्ग चेतना की आवश्यकता होती है, ठीक उसके विपरीत समाजवाद में वर्ग चेतना का विकास भौतिकवाद पर अंकुश लगाने के लिए होता है। अगर समाज में भौतिकता पर अंकुश लगा रहेगा तो यह भौतिकता के अधिक उपयोग से बच जाएगा और समाज भ्रष्ट होने से बच सकेगा। भारतवर्ष के लिए जो यह प्रयोग होगा कोई नई अवधारणा नहीं होगी। यहां जीवन का प्रत्येक पहलू नैतिकता और मानवीय मूल्यों से जुड़ा है। विगत में भी भारतवर्ष में नैतिक मूल्यों का पालन करने वाले समाज रहे हैं, इसलिए वर्ग चेतना समाजवाद का एक अभिन्न अंग है। मिलकर रहना, मिल बांट कर जीना और खाना और निम्न कोटि की वासना का अपरिग्रह भारतीय जनमानस के अनुरूप है। अगले एपिसोड में हम कुछ और जानेंगे जयप्रकाश जी के सोच के बारे में, थॉट्स एंड टीचिंग्स। अब रुख करते हैं भारत की 150 साल पुरानी पार्टी की ओर, जो आज की तारीख में सिर्फ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई है। इसका जनता से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों की मिल्कियत कहें तो दुकान है। Party has shrunk to low levels as never before. Only a few days back, 23 veteran leaders wrote a letter to the interim Congress president suggesting ways and means by which the party could be resurrected, beginning with having elections for a full-time party president as per the constitution. ख्याल रहे कि ये सारे 23 नेता कांग्रेस पार्टी में जमीन से ऊपर उठकर आए हैं। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक, मनीष तिवारी, ये सभी नेता कॉलेज ब्लॉक स्तर से पार्टी में ऊपर उठे हैं। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस का इन्होंने देशव्यापी सफल नेतृत्व किया है। नतीजा क्या हुआ? इन द गार्ब ऑफ स्पेशल इनवाइटीज, hooligans were invited in the virtual Congress working committee meeting. To do what? To humiliate the senior congressman. क्या ये सही था? क्या इससे पार्टी में दरार नहीं हुई? क्या ये सब कुछ किस्सा कुर्सी का नहीं है? राहत इंदौरी के शब्दों का अगर इस्तेमाल करें तो कांग्रेस पार्टी के मिट्टी में सबों का खून है, सिर्फ किसी के बाप दादा का थोड़ा ही है। और दिनकर जी के शब्दों का इस्तेमाल करें तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उत्तर प्रदेश में सूचना के मुताबिक स्वयं प्रकाश गोस्वामी ने कई शीर्षस्थ कांग्रेसी नेताओं के साथ सोनिया, राहुल और पिंकी से कहा है कि जल्द से जल्द पार्टी में चुनाव करवाएं और नकली गांधी की जगह असली जनता के प्रतिनिधि को अध्यक्ष बनाएं। टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, आई हैव ऑल्सो गिवन माई स्वेट एंड ब्लड फॉर द पार्टी, so has my family members, and it gives me the right to humbly request the children of my leader, take political sannyas, choose some other profession. This is not your cup of tea. You do not have any qualities to be the leader of the Congress party, or for that matter the leader of the 130 crore Indians. It's not for you. In the next episode we'll try and compare the leadership of Modi ji with the present Congress dispensation. Are there any comparisons? क्या कांग्रेस को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है? And also about the much talked about money to the family foundations, money coming from China. Your thoughts and suggestions are welcome. आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आगे के इतिहास की। कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत होगी, कई और तथ्यों के साथ फिर आऊंगा और मिल बैठकर चर्चा करेंगे आपके अपने प्रोग्राम वीकली टेक्स फ्रॉम न्यूयॉर्क में। हाँ, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगले एपिसोड की सूचना आपको पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।